Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 71. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1400 of committed 2000 questions, so that means that 600 questions are now pending. That will be also be completed very soon. We are directly jumping to the first question of the day. The series is starting from 1401. Make sure that you have watched all the previous video before jumping directly to this video. Which of the following statement about the executive is or are correct? Three statement has been given और executive के बारे में. There is less of separation of power in the presidential system of government compared to the parliament. इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया था वो बहुत ज़्यादा है सेपरेट. वहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो अमाउंट ऑफ सेपरेशन है और मोर इम्पोर्टेंटली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो सेपरेशन है दैट काइंड ऑफ सेपरेशन इज नॉट विजिबल इनटू द पार्लियामेंट्री सिस्टम. रादर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम योर एग्जीक्यूटिव is drawn from where? Legislature. So the separation of the concept of separation of power in parliamentary system is rather diluted when in comparison to presidential system. So this statement becomes incorrect. अगर हम लोग elimination technique, let us see if we can eliminate by using we can figure out the answer by using elimination. If one cannot, because correct हमें बताना है and this statement happens to be incorrect, so one can't be part of answer. And if one can't be part of answer, this can't be answer, this can't be answer and this can't be answer. So the only possible answer that is left out is B. Let us see if B is answer. Yes, B is answer. Make sure you read these two statements as well. Do not leave it. ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ये दो स्टेटमेंट भी पढ़ लेना. एडिशनल एक लर्निंग मिल जाएगी. यहाँ तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके मैं आंसर पे पहुँच गया हूँ. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. To provide opportunity for education to his child or ward between age to 6 and 14 years. Of course this is also a fundamental duty. Fundamental duty of parents to foster respect for international law and treaty and obligation. This is actually a DPSP. ठीक है, liberal DPSP है. So 1 and 2 is going to be the answer and hence A is going to be the right answer. ओहो, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी यहाँ नॉट मुझे, सो 3 only is going to be the, if it would have been which of the following is fundamental duty then 1 and 2 would have been the answer. If it is asking not a fundamental duty because this happens to be a DPSP, so C is the right answer. Which one of the following criteria is are not mentioned in the constitution for the disqualification of members of legislative assembly? Okay, he, she is of unsound mind and stands so declared by court. Actually this is mentioned into the constitution. Okay, he, she is undischarged solvent. Yes, this is also mentioned into the constitution. He or she has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state. This is also part of your constitution. Let me switch off the fan and thereafter we can start. Just a moment. Okay, so and next the fourth option is he, she must not have been found guilty of certain offenses or corrupt practices in the election. Actually this is not part of Indian constitution. What this is part of? This is part of Representation of People's Act. That is, this is part of an act, है ना, and this is asking is or are not mentioned into the constitution. So this is not mentioned into the constitution because this is part of Representation of People's Act. So D is going to be our answer. Okay, the Supreme Court of India in Kito Halan case gave its verdict in which of the following subjects? तो स्पीकर की पावर्स के ऊपर ओवर द एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर तो हालन केस में जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी of the Council of Ministers, the Constitution of India follows which of the following principles? Collective responsibility, yes collective. Individual responsibility, yes individual. Legal responsibility का concept जो है Indian Constitution या Indian Parliamentary System में नहीं है. Legal responsibility का concept जो है ये British Parliamentary System में है, जहाँ से हमने Parliamentary System actually लिया है, but Indian Parliamentary System में ये वाला जो element है
फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वाला एलिमेंट नहीं है। सो वो करेक्ट ऑप्शंस पूछा है, 1 and 2 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कलेक्टिव अगेन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इज आर ट्रू? अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ पास्ड इनटू द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑफ कोर्स ये सच है ना, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए नहीं, whole of the council of minister will have to go. So that's correct. If a minister does not agree with the policy or decision of the cabinet, he or she must resign. So that is also correct and that is also part of your collective responsibility. ठीक है, कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, so let us discuss this. See, collective responsibility का ultimately it's not कि भाई जो मिनिस्टर एग्री नहीं करते तो उनको अपनी ओपिनियन एयर करने का मौका नहीं दिया। सी कैबिनेट मीटिंग में आप बैठे हुए हो, आप मिनिस्टर ए बी सी डी ई एफ ये सारे मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। सो यहाँ आपको जो भी ओपिनियन, अगर आपको डिफरेंट एक पॉलिसी मैटर पे एक लेजिस्लेशन पास होना है, एक लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग स्टेज से फिर पार्लियामेंट में लाया जाना है, और इस स्टेज पे जब कैबिनेट मीटिंग में आप बैठे हो और आपको कोई भी डिसएग्रीमेंट है, यू कैन ओपनली एयर दैट। बट एक बार अगर कैबिनेट का डिसीजन हो गया है कि हम लोग ये चीजें करने जा रहे हैं, उसके बाद कोई भी मिनिस्टर ये नहीं करेगा कि आप पब्लिकली आके उस लेजिस्लेशन के क्लाउजेज या उस पॉलिसी डिसीजन को थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया आप अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस कर रहे हो। नहीं, अगर आप एग्री नहीं करते हो कैबिनेट के डिसीजंस को और बाहर ओपिनियन को एयर करने की नौबत आती है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। यू आर नॉट फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट, हमें करेक्ट ही बताना है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प द एडवांस कॉज ऑफ माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप or the individuals. Consider the following statement about PIL. Okay, Supreme Court in SP Gupta versus Union of India case defined PIL. That's correct. It can be only filed in Supreme Court or High Court. That's incorrect. है ना, अगर जॉली LLB आपने मूवी देखी होगी, क्या वो हाई कोर्ट में PIL फाइल की गई थी? नहीं, वो सेशन कोर्ट्स में फाइल की गई थी। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस कैन अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर, सो दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो 1 and 3 करेक्ट पूछा है, सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, in the enforcement of fundamental rights, the jurisdiction of Supreme Court is original and exclusive. Now let us try to this statement I am marking incorrect. Why I am marking incorrect? See, Supreme Court आप सभी जानते होंगे कि कभी भी अगर आपके फंडामेंटल, आप लोगों को पार्ट 3 में पढ़ाया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का जैसे ही वायलेशन होता है आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के, बट इज इट एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि क्या आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो? द आंसर इज नो, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एज वेल अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क किया। ओके, कैन वी रीड द सेकंड स्टेटमेंट? द पार्लियामेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सी कुछ आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 358 एंड 359 जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंडेड रहेंगे, है ना। लेकिन जो कोर्ट जाने का जो राइट है, राइट टू मूव कोर्ट, वो सस्पेंड नहीं कर सकती। ठीक है, दिस इज व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग योर इमरजेंसी 1975। तो ये वाला जो राइट टू मूव टू एनी कोर्ट है ना, 358 एंड 358 में आपका आर्टिकल 19 एंड 359 में अदर आर्टिकल्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20, 21। ठीक है, तो आप सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू एक सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाके, बट राइट टू मूव एनी कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। ओके, द नॉर्मल लाइफ ऑफ राज्यसभा is 6 years. See, राज्यसभा की लाइफ जो है वो 6 years नहीं है, it is the members, please understand. राज्यसभा तो अनएंडिंग, लोकसभा की लाइफ ये टेन्योर 5 years की है, बट राज्यसभा की तो अनएंडिंग है ना, उनके मेंबर्स की जो टर्म है वो 6 years है। You understood the difference? Because 1/3 of the member retires every second year और हमेशा ये continued house है। So this is incorrect.
ठीक है। द टेन्योर, ऑल्दो अगर फर्स्ट टाइमर हो, आप लोगों को फर्स्ट गो में ये बिल्कुल सही लगेगा, सही मार्क करके आओगे। The tenure of Lok Sabha shall not exceed 5 years under any circumstances, so this is also incorrect, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इसको एक्सीड किया करवाया जा सकता है। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपन्स टू बी इनकरेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। अगेन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, यूनिटरी फीचर है। अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए व्हाट इज द फेडरल फीचर, फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आपके समझ फेडरलिज्म के ऊपर नहीं डेवलप हुई है तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कई बार छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आते हैं और उनको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, बट इस तरह के स्टेटमेंट्स को सोल्व करने के लिए आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर है ना, उसको समझना पड़ेगा। अगर वो समझ नहीं है तो इसमें से एक दो गलतियां आप करने जा रहे हो। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल ये यूनिटरी फीचर है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी जो कि कैग है, ये भी बिल्कुल यूनिटरी फीचर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इनटू द अपर हाउस, अब ये आधा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे कि हाँ ये आपका रादर फेडरल फीचर है, बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जब इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये यूनिटरी फीचर, बिकॉज यहाँ आप कुछ स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन प्राइमेसी मिल जाती है, सुप्रीमेसी मिल जाती है, एंड कुछ जो छोटे स्टेट्स हैं जो कि यूएसए में नहीं है ना। यूएसए में क्या है, अपर हाउस जो है उनका, ठीक है, उस हाउस में सभी स्टेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, उन सभी स्टेट्स को, सभी प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंट, 2 सीट्स टू ईच स्टेट, 50 स्टेट्स दे डू हैव, तो अपर हाउस का मेंबरशिप उनका 100 मेंबर्स का है। सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन दिस इज आल्सो यूनिटरी फीचर। रिमेंबर, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा तो पार्लियामेंट क्या है, उन फीचर्स को जल्दी से अमेंड कर सकती है विदाउट स्टेट्स का कंसेंट लिए हुए, है ना। तो अगर यही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यही होता ना तो ये फेडरल फीचर हो जाता, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, इनिशिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का है वो पार्लियामेंट में ही स्टार्ट हो सकता है, स्टेट्स तो नहीं स्टार्ट कर सकती। अगर स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता स्टार्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसे फेडरल फीचर आप कह सकते हो। ऑल 4 एबव मेंशन are actually unitary features of Indian Constitution, so D is the right answer. Next, VVPAT machines are recently seen in use. Consider the following statement with respect to it. Okay, it is used during election process to eliminate fake votes. Yes, that's correct. It provides slip to voter to verify that their vote which can be assessed by the voter themselves. इट इज़ इनकरेक्ट एक्चुअली। ये असेस जो वीवीपैट है ये स्लिप तो दिखाता है, बट स्लिप कैन बी विजिबल ओनली फॉर 7 सेकेंड्स, दैट टू इनसाइड दैट ग्लास डोर, ठीक है। तो आप असेस नहीं कर सकते, है ना, उसमें इलेक्शन सिंबल जो है और किस कैंडिडेट के लिए आपने वोट किया है, बट आप जो ये असेसमेंट की कैपेसिटी है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो पोलिंग ऑफिसर है, वो बाद में कर सकते हैं। वोटर देमसेल्व्स जो ये असेसमेंट है वो नहीं कर सकते। इनकरेक्ट हमें बताना है, सो 2 ओनली, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट ओनली इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशंस अपॉन, तो डीपीएसपी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर लिमिटेशन डालती है? द आंसर इज नो। लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर लिमिटेशंस डालती है? सी आप इसको लिमिटेशन मत लेना, डीपीएसपी ठीक है एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर डालती है, बट क्या डज इट पुट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन विच डज हैव अ कॉनोटेशन? लिमिटेशन का क्या मतलब है कि नेगेटिव कॉनोटेशन है ना। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जरूर डालती है, बट नेगेटिव जो ऑब्लिगेशन है वो वाला कंटेंट यहाँ नहीं होता है। तो लिमिटेशन लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे डालती है डीपीएसपी, लिमिटेशन नहीं। जुडिशियल फंक्शंस पे, एग्जीक्यूटिव, किसी पे भी लिमिटेशन नहीं डालती है डीपीएसपी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जरूर डालती है। सो नन ऑफ द करेक्ट पूछा, नन ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, नॉट ऑल द मेंबर्स। All the members of Legislative Assembly, not again all the members. All the members of Legislative Assembly of Delhi, not all the members. Members of the Legislative Council of the state, Legislative Council does not participate. ठीक है, इनमें से जो nominated members आपको उनको हटाने पड़ेंगे इन तीनों में से। Correct पूछा है, none of the above is going to be correct. Okay, consider the following statement about upgrading the skills. Okay, उस्ताद स्कीम के बारे में, this is not of quality, we are not discussing it. Consider the following statement
statement about doctrine of basic structure. Okay, the doctrine of basic structure was available since adoption of the Constitution of India. इनकरेक्ट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में केशवानंद भारती केस में आपकी इमर्ज हुई थी। सो दिस कैंट बी पार्ट ऑफ आंसर, दिस कैंट बी पार्ट ऑफ आंसर एंड दिस कैन बी आंसर, कैंट बी आंसर, राइट, बिकॉज करेक्ट पूछा है, दिस वन हैपेंस टू बी इनकरेक्ट। सो ओनली पॉसिबल आंसर बाय एलिमिनेशन टेक्निक दैट वी कुड रीच वाज सी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ लेना एक बार वीडियो पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड their chairman are incorrectly matched, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन होने जा रहा है, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ये आपके माइनर कमिटीज़ है मेनली, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑल 4 हैपन्स टू बी, नॉट एनी ऑफ दिस हैपन्स टू बी मेजर कमेटी, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन लुक इनटू इट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द राइट टू एजुकेशन एक्ट inserted a new article, that is article 21A in the constitution by 89th constitutional, no, it was by 86th constitution, sorry, 42nd constitutional amendment act, right, 42nd constitution, 86 से तो आपका जो है, ठीक है, वो 51A में एक सब आर्टिकल ऐड किया गया था, देन DPSP में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो 86 इज दूसरा, ठीक है। 21A जो इंसर्ट हुआ था राइट टू एजुकेशन, ठीक है, दैट वाज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, सो दैट्स करेक्ट, है ना। द फाइनेंशियल बर्डन, जस्ट अ मोमेंट, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, correct statement, choose the correct statement, ठीक है। so if correct has to be asked, then again this can't be answer, part of answer, this can't be answer, so either 2 or 3 or 2 or 4, ठीक है। The financial burden will be shared by central, no, it will be shared by states as well along with the center, so that's incorrect. It inserted a fundamental duty under article 51A, that's correct, abhi aapko bataya। so 2 and 4 is going to be the right answer, that is C is going to be the right answer। which of the following ensures cooperative federalism into the India, ठीक है। so all India services, of course cooperative federalism का एक concept है, ठीक है। although unitary feature भी है ये all India services, अपॉइंट जो है, अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट जो है वो सेंटर के थ्रू होता है, सर्विस करते हैं लोग स्टेट के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल भी आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। स्टेट के हेड्स एंड सेंटर के हेड जो हैं वो बैठते हैं तसल्ली से और वो अपने जो इश्यूज हैं वो सुलझाने। नीति आयोग भी अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को प्रमोट, बट प्रेसिडेंट रूल, हाउ कैन इट प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रादर इट प्रमोट्स इज कन्फ्रंटेशन। जोनल काउंसिल भी अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को प्रमोट। So 1, 2, 3, 5 is going to be the right answer and hence D is going to be the right answer. Governance refers to exercise of political and administrative authority at all levels to manage country's affair. Which among the following is are characteristic of good governance? Strategic vision, yes, that is example of good governance. Consensus orientation, rule of law, freedom of association and speech, all of the above are traits of good governance. Last question of the day, which of the following statement is are correct regarding governor of a state? Governor has a fixed tenure of service, नहीं, गवर्नर को कोई tenure, although 5 years बोला गया है, बट उन्हें कभी भी जो है हटाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या प्रेसिडेंट के विम्स पे वो होते हैं। सो दिस कैंट बी आंसर, करेक्ट बताना है, दिस कैंट बी आंसर, सो दिस कैंट बी आंसर, दिस कैंट बी आंसर, सो आंसर कैन बी आइदर दिस और दिस। लेट अस सी, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर, incorrect, by the president. Governor has the power to appoint judges of the, no, governor does not have power to appoint judges, it is done by the president. Governor जो है मैक्सिमम क्या करते हैं, ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। सो नन ऑफ द above is going to be the right answer, that is D. So with this we are wrapping up this video, we'll meet you in the next video on the next day. Till then, bye bye.